Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So we are taking up next set of important topics. So first we are seeing that Israeli tanks it is close to the Mawasi refugee zone. So from PT perspective, this region is important. We should remember that Mawasi refugee zone and then Rafah crossing, which is between Egypt and the Gaza Strip. So southern tip of the Gaza Strip to be specific. And this is one of the centers again around the Dar el Bala in the center. So, in rebooting agriculture, so when we're talking about the agricultural contribution to GDP, we're talking about how that can be increased. So, one of the major challenges in agriculture sector is the low productivity. So in that case, we are talking about, given that climate change, how we can simultaneously take forward this challenge by addressing it with the help of technological solution, and also keeping in mind that we are climate smart. We're doing like climate smart agriculture. We're increasing the climate resiliency of the farmers, of the crops that we are planting through the GM seeds that we are doing scientifically. And then when we're talking about the fertilizers, so there also we talk about that the fertilizer subsidy reforms, for example, the prices, they should be decontrolled. And in that also we are talking about the biofertilizers, or we're talking about the neem coated urea. And apart from this, even if we are talking about giving subsidy, so there also it should be done in the form of direct benefit transfer. Then in case of marketing, we can talk about the role of APEDA, the farmer producers organizations. And in this case also, we've talked about the computerization, so that again, the things go digital. And then when we're talking about final selling, one is the procurement by the government, by the FCI at MSP. And another, we are talking about how farmers can get larger access to the market at competitive prices, market determined prices, for example, through the electronic portals like eNAM. And further, in the agriculture sector, we can also then talk about how we can increase the export. So there also we are seeing that specifically in the horticulture sector, India again is one of the largest producers of again fruits and vegetables, and then we are the world's largest producer in case of milk. So this is one area where we are seeing that there is a scope of increasing the share, and it can play an important role even in terms of exports. So, for example, the Gujarat's Amul model is there, and specifically in this, when we're talking about food inflation, so there is this scheme top, which is for tomato, onion, and potato, so as to again ensure adequate supply in the market. And here also one thing is debated is that for example, recently the government took the decision that we'll be banning the exports of, for example, wheat. So that was seen by the farmers that this decision is pro consumers and not pro farmers, because the income of the farmers will get impacted because they'll be not be able to export their produce. So this was one thing. So here also one idea was debated by several economists, like instead of banning the exports, we can allow for like lesser amount of imports of that particular crop or food grain in short term, so that again we are able to ensure adequate supplies there, and we can ensure via this that the prices remains at normal levels, and also the farmers are also able to export their produce to the international market. Now, looking at certain figures, so here specifically it is talking about state of MP, that is not important. So one is that all India GDP growth of the agricultural sector is okay. It is about 3.6%. When talking about the agricultural GDP growth of the agriculture sector is 3.6%. So one is this data, and so we target ki how we can take it up till 5%.
apart from this, capital expenditure will play important role. And then again, revenue expenditure is also there in the form of the subsidy. We have discussed about this. Fertilizer subsidy, nutrient-based subsidy is provided by the government. And even in terms of greenhouse gases emissions also, agriculture is like, it is one of the largest sources. For example, the rice fields where we are seeing that there is anaerobic reaction taking place, which leads to the emission of methane. So carbon sequestration or how that can be reduced is another aspect. Then R&D is one area in specifically agriculture sector. So here also we're talking about that at least 1% of the agriculture GDP, it should be allocated for agricultural research and development specifically. So climate smart, heat resistant varieties of various crops, more crop per drop, because again, water stress is another challenge in agriculture sector. Then talking about ethanol. So this article is raising the question whether this is really an eco-friendly fuel or is it a green mirage? Like in case of the money market, we talk about evergreening of loans. So whether this is a green mirage or really this is an eco-friendly fuel or not? इसमें मानसी वी कैन डिस्कस कि ओवरऑल when we extract petrol, coal or any other fossil fuel based mineral or oil, उसका भी लॉन्ग टर्म एक्सट्रैक्शन इससे सोल्यूशन नहीं है क्योंकि इट इज़ इन अ वेरी लिमिटेड क्वांटिटी. Similarly, ethanol production requires sugarcane cultivation. It requires barley, wheat, etc. cultivation, which is also water intensive. तो बेसिकली इसमें नीचे में दिया हुआ है कि द मोस्ट अलार्मिंग इज वाटर फुटप्रिंट ऑफ एथेनॉल. 1300 लीटर वाटर जरूरत पड़ता है 1 लीटर एथेनॉल प्रोडक्शन करने के लिए. इंडिया में ऑलरेडी हेवी यूसेज ऑफ ग्राउंड वाटर है. ब्लू वाटर फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है. इंडिया इज फेसिंग वाटर क्राइसिस इन सेवरल रीजन. मराठवाड़ा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बुंदेलखंड एक्सेट्रा. तो वहाँ पर क्या एथेनॉल प्रोडक्शन करने से आप फ्यूल स्टैंडर्ड मीट कर पाएंगे, लेकिन वाटर क्राइसिस जो आने वाला है, वाटर क्राइसिस जो फेस भी कर रहे हैं, उस पर और चैलेंज क्रिएट करेगा. तभी इसलिए बोला कि इट इज़ अ ग्रीन मिराज और इट इज़ अ फ्रेंडली फ्यूल. क्या खाली ये बोलने के लिए है कि ओवरऑल कि ग्रीन है, लेकिन अंडरलाइन करंट क्या है कि वाटर ज़्यादा यूज करने से ग्रीन है नहीं लॉन्ग टर्म में. तो तो ये एक वन इसी साइड ऑफ द पिक्चर हो गया. जैसे सोर्सेज की यहाँ पे बात हो रही है, शुगर केन की बात हुई, तो हम ये भी तो बात करते हैं कि अगेन जो वेस्टेड फूड ग्रेन्स हैं या जो मतलब खराब हो चुके हैं, फॉर एग्जांपल व्हीट हो गया, तो उसको हम कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल. तो अगर उसका शेयर इंक्रीज होगा तब वी कैन से कि इट कैन बिकम एन इको फ्रेंडली फ्यूल. एंड इसका इंपॉर्टेंट रोल है ओवरऑल in controlling the volatility in the petrol and diesel prices also, so that again ये भी एक हमारा self sufficiency model बन सकता है. Instead of again ये हमारी reliance on importing the crude oil भी reduce कर सकता है. So एक ये aspect भी है. इसके एक अलावा और एस्पेक्ट है कि जो बोलते हैं ना फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड एंड फोर्थ. हम्म थर्ड एंड फोर्थ जब तक नहीं आया तब तक ये सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता. राइट. हाँ, algae production और टेक्नोलॉजी. एग्री प्रोडक्शन भी है, हाँ, टेक्नोलॉजी भी, हाँ. Then global trade promotion body specifically MSME sectors के लिए still अभी ये planning stages में है. So it would be named as Global Trade Promotion Organization. So कल भी हमने ये aspect की बात करी थी कि share approximately 90% है MSMEs का जब हम specifically industrial sector की बात करते हैं. So वन ईयर जो चैलेंज हमें देखने को मिल रहा है कि एक्सपोर्ट्स हमारा जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है, तो इसलिए स्पेसिफिक फोकस किया जा रहा है यहाँ पे. एक एस्पेक्ट ये है कि ग्लोबल ट्रेड प्रमोशन बॉडी बनाई जाएगी. एक है कि एक सेपरेट डेडिकेटेड बैंक भी बनाया जाएगा, ये भी बात हो रही है स्पेसिफिकली फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू द एमएसएमईज. अभी एमएसएमईज का जो भी फाइनेंसेस है, जो भी क्रेडिट नीड्स या फिर अवेलेबिलिटी है, दैट कम्स अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. सो दैट उनको लाइक इजी और क्विक फाइनेंस मिल सके. एक वो है. एंड यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर हम बात करें खाली ट्रेड प्रमोशन के पर्सपेक्टिव से, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसको और बूस्ट मिल सकता है लार्जर स्केल पे उसको.
वी कैन से कि एनकरेजमेंट मिल सकती है। So you can see कि MSMEs they are contributing 45% of the country's total exports. So इसको और increase किया जा सकता है। And employment में भी the share is large. तो जो small scale industries हैं, जो cottage industries हैं, उनको हम boost दे सकते हैं। And again वो labor intensive भी होती है, तो एक aspect जो lower scale में या फिर हम medium scale level पे बात करते हैं, वो भी एड्रेस हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट के केस में। सो एम्प्लॉयज मोर देन 110 मिलियन पीपल। So नीति आयोग की रिपोर्ट भी on MSME, so it states कि exports represent an enormous and underutilized opportunity for the MSME sector. So here the growth potential is large, and even this can play an important role even in achieving our potential GDP growth rate. Then merchandise exports की बात की है, the again data states कि exports fall हो रहे हैं, ठीक है important. तो कैसे काम करेगा ये GTPO? So it will have branches in other countries and they will coordinate with the local economy and it will provide one-stop solution for the MSME firm कि कितना ट्रेड डिफिसिट है, कहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर से लेकर के बाइंग सेलर मीट, ग्लोबल एक्सिबिशन, ट्रेड शो एक्सेट्रा हर जगह It will में। lead to, in a way, it will lead to formalization of MSMEs. लिखा है ना कि it will help these small businesses in registration, licensing and certification for specifically exports. और जो even जो quality standards भी है exports की बात करते हैं, तो उस challenge को overcome करने में भी help करेगा। Then green bonds, तो government likely to issue green bonds, एक important fact यही है कि government issues the green bonds, और going by the terminology, by the name green bonds, जो भी funds raise किया जाएगा, debt raise किया जाएगा, that will specifically be invested in the green projects. For example, it can be in renewable energy में भी different जो types हैं उसमें investment हो सकती है, climate smart agriculture में, तो it will be related to sustainable development. So sovereign green bonds worth rupees 25,000 crores. This will be a part of the borrowing schedule of the government. Finance sustainable infrastructure projects. यहाँ पे examples mentioned है. So RBI has also permitted the foreign portfolio investors to invest in these green bonds via the International Financial Services Center, जो कि गिफ्ट सिटी गुजरात में लोकेटेड है, IFSC. तो एक ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया पीटी के लिए, दैट एफपीआईज कैन आल्सो इन्वेस्ट इन दीज। ये क्वेश्चन भी पूछा था इस बार प्रीलिम्स में, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट, इंश्योरेंस हाँ इंडस्ट्री और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उस कॉन्टेक्स्ट में, तो वो भी ट्रू था। एंड इट अट्रैक्ट सब्सटैंशियल इंटरेस्ट फ्रॉम एफपीआईज, तो ये की। बट यहाँ पे चैलेंज एक ही हो सकता है कि ये फॉरेन सोर्सेज जो हमारा एक्सटर्नल बोरोइंग है, जिसका शेयर अभी रिलेटिवली कम है इंडिया के ओवरऑल बोरोइंग शेड्यूल में, तो वो एक चैलेंज आएगा। प्लस एफपीआई जो है थोड़ा वॉलेटाइल होते हैं, दे प्रेफर इन कंपैरेटिवली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कंपेयर टू, जब हम इवन एफडीआई से भी कंपेयर करते हैं। सो एक वो एस्पेक्ट भी यहाँ पे रहता है, तो कैपिटल आउटफ्लो वाला एस्पेक्ट विल बिकम अ चैलेंज, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन इंडियन रुपी का हमें देखने को मिलता है, and weakening of Indian rupee. So different indexes to compare the performance, ये mentioned है। And आप एक बार ये देख सकते हो जो इंटरेस्ट इनकम है, whether that would be taxed or not, जो ग्रीन बॉन्ड्स की इंटरेस्ट इनकम होगी, आई थिंक टैक्स तो होनी चाहिए। सो ग्लॉसरी हेयर, जीरो नॉलेज प्रूफ क्या, लोअर इंटरेस्ट रेट, क्या आवश्यक? लोअर इंटरेस्ट रेट रहेगा इसके ऊपर। हाँ, इसमें हमने एक और कीवर्ड की बात करी थी ग्रीन बॉन्ड्स में, ग्रीनियम, मतलब ग्रीन प्लस प्रीमियम। तो उसका इंटरेस्ट रेट तो लो है, फिर भी हम ग्रीन प्रीमियम की बात करते हैं, तो दैट मीन्स कि आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो जो लार्जर बेनिफिट, जो लार्जर गुड है वो सभी सिटीजन, सभी रेजिडेंट्स का होगा, तो इसीलिए उसको ग्रीन प्रीमियम बोला जा रहा है। और जनरली इंडिया के अंदर में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है, इट विल बी टैक्स्ड
12 महीने के अंदर करेंगे तो इसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, 12 महीने के बाद करेंगे तो 10% लगेगा LTC। हाँ, नॉर्मली जो कैपिटल मार्केट में वो ही है फिर। तो जो नॉर्मल रहता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, वो लाइक अगर 1 ईयर या उससे कम के लिए आप होल्ड करते तो वो 15% होता है। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है वो 10% होता है, लाइक मोर देन 1 ईयर वाला जो है। जीरो नॉलेज प्रूफ, तो व्हाट इज दिस, एक एक ही टर्म है जो अगेन पूछे भी जा सकते, तो क्रिप्टोग्राफिक मेथड होता है। जीरो नॉलेज प्रूफ इज अ वे बाय विच अ पार्टी convinces the other party that it possesses a piece of data or information without revealing the data itself. मेरे पास है हाँ, तो लेकिन जीरो बताएंगे नॉलेज कौन विदाउट डेटा शोइंग है। दैट, हाँ, द डेटा, ठीक है, वो प्रूव करते हैं थ्रू द क्रिप्टोग्राफिक मेथड। दिस इज द मेथड ऑफ showing or proving. Sovereign cloud so is a cloud computing environment with cloud कंट्री के technology. अंदर में होना चाहिए, बस हाँ, स्पेसिफिकली फॉर कंट्री और जुरिडिक्शन। अनलाइक ट्रेडिशनल सर्विसेज की हर जगह होता है, सॉवरेन क्लाउड हम्म, सॉल्यूशन आर होस्टेड मैनेज विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री। ट्रू, हाँ, तो सॉवरेन इसलिए नाम वो ही है। हम्म हैंडलिंग get सेंसिटिव to- इंफॉर्मेशन, so some डेटा लोकलाइजेशन, डेटा companies इंटीग्रिटी। that have been acquired or have completely pivoted. So it can be useful for the investors and entrepreneurs to gain insights on specific industries. And जो potential risk है उसको again reduce किया जा सकता है। मतलब Dead जो भी wood, स्टार्टअप फेल हो गया उसे सीख सकते हैं कि क्या हम्म, कैसे घाटा हुआ, कैसे वो डूबा है। तो हम लोग अपना एक आपसे अप्लाई कर learning सकते से हैं। वो repeat ना। Learn। Buffer overflow, ये simple है, I think when buffer exceeds the storage capacity, food grains के context में है, so overflow, ठीक है। तो ये सॉवरेन, यहाँ गोल्ड बॉन्ड्स की बात हो रही है, तो गोल्ड में भी कैसे जो स्पेसिफिकली इंडिया में अगर हम बात करते हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स का, सो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे कल्चर का, हमारे ट्रेडिशन का। एंड दिस इज, जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स हम उसको बोलते हैं अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होती है, वेदर दिस इज इन गोल्ड या फिर लैंड में या प्रॉपर्टी में, क्योंकि वो जो सोर्सेज है वो फिर आगे चैनलाइज नहीं हो पाते, इसलिए उसको हम अनप्रोडक्टिव बोलते हैं। एंड गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का मेन इंटेंशन या मेन ऑब्जेक्टिव ही इसको इंट्रोड्यूस करने का ये था कि आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर पाओ और उसका जो लार्जर बेनिफिट है, चीजें इंटरकनेक्टेड होके अल्टीमेटली वो इकोनॉमी में इन्वेस्ट भी होना चाहिए पैसा, तुम्हारी इकोनॉमिक ग्रोथ में वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो पूरा फंक्शनिंग है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के पीछे। एंड important, these are issued by Reserve Bank of India, and denomination जो होता है that is in the form of grams of gold. तो ये small से larger units तक होता है according to the capital that you want to invest. And capital gains arising on the redemption of these bonds on maturity would be considered as an exempt transfer under the Income Tax Act. So these are not liable to be taxed. तो ये important है। गोल्ड बॉन्ड्स में जो again आपका इंटरेस्ट या जो भी प्रॉफिट होता है दैट इज नॉट लाइबल टू बी टैक्स्ड। एंड इसमें गोल्ड में टैक्स। ट्रस्ट, हाँ, ट्रस्ट और यूनिवर्सिटीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, एवरीवन कैन इन्वेस्ट, सो दे आर एलिजिबल इन्वेस्टर्स। एग्जेम्पशन फ्रॉम द कैपिटल गेन्स कैन बी अवेल्ड ओनली बाय एन इंडिविजुअल, तो ये सिग्निफिकेंट है। जो एग्जेम्पशन है कि कैपिटल गेन्स टैक्स आपको नहीं पे करना पड़ेगा, वो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है। और जो टेनोर है बॉन्ड्स का, 8 years के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड दे कैन बी रिडीम्ड आफ्टर द 5th year। तो ये ऑप्शन है, बट अगेन उसमें कुछ आपको पेनल्टी या स्मॉल अमाउंट पे करना पड़ेगा। एंड एग्जेम्पशन प्रोविजन डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिडेम्पशन और मेच्योरिटी एंड प्री मेच्योर रिडेम्पशन। So capital gains arising on sale of the bonds to another investor, that would be taxable. बस यही है कि individual के केस में capital gains exemption is there। बॉन्ड्स को हम ट्रेड भी कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, तो ये MCX पे ट्रेड हो सकता है क्योंकि इट इज अ कमोडिटी, तो MCX पे इट कैन बी ट्रेडेड। तो कैपिटल गेन्स टैक्स वुड बी एट 20% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज, एजुकेशन सेस भी लगता है। मतलब इसमें लिखा नॉट लायबल टू टैक्स और फिर कैपिटल गेन टैक्स, इसमें क्या हुआ मतलब कि ये इसमें। इनकम टैक्स और कुछ इसमें स्पेसिफिक है कि एक तो खाली इंडिविजुअल जो है उसके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता है इसमें, बाकी जो है यहाँ पे जो लिखा है कैपिटल गेन्स अराइजिंग ऑन रिडेम्पशन ऑफ द बॉन्ड्स ऑन मेच्योरिटी
तो अगर मेच्योरिटी पे आप निकाल रहे हो तो टैक्स नहीं होगा, मतलब इनकम टैक्स के अंडर नहीं होगा। अगर बिफोर मेच्योरिटी आप विड्रॉ करो तो मेरे हिसाब से उस केस में लगेगा। ठीक है। हाँ ये लिखा है ना, अमाउंट्स रिसीव्ड अपॉन रिडेम्पशन इज टैक्सेबल एज इनकम टैक्स फ्रॉम अदर सोर्सेज। Green energy leads the charge. So here, first of the 5 part series on sectors seeing rising investments. So investments increase यहाँ पे like जो target है हमारा 28 trillion rupees investment. That is the planned investment. So challenges initially we are seeing कि there is high initial cost, raw material की बात करें, because this is again एक तरीके से it is a sunrise sector. सो इनिशियली जो लार्ज स्केल बेनिफिट्स होते हैं वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो हम बोलते हैं कि तभी देखने को मिलते हैं, तो ये ओवरकम करने पड़ेंगे हमें चैलेंजेस। और वी आर नॉट हैविंग लाइक सो मेनी डाइवर्स फैसिलिटीज। तो फॉर एग्जांपल कि टाटा पावर दे आर इन्वेस्टिंग, अडानी ग्रुप दे आर आल्सो इन्वेस्टिंग, तो इनिशियल स्टेज है, तो दैट इज व्हाई देयर इज दिस कॉस्ट। टेक्नोलॉजी में टेक्नो इकोनॉमिक क्वेश्चन सच एज इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन द कंट्रीज इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे जो रेन्यूएबल एनर्जी जनरेट की जाएगी, स्पेसिफिकली जैसे सोलर एनर्जी में बात करते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल से जो एनर्जी जनरेट हो रही है, रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स जो है, तो वो जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम मेन ग्रिड से कैसे कनेक्ट और इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो अभी भी एक चैलेंज है। एंड सोलर एनर्जी की हम बात करते हैं तो अभी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी इंडिया में 81 गीगावाट्स के आसपास है। बाकी यहाँ इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, डिफरेंट प्लेयर्स, ये हो गए बीपीसीएल, गेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी। बेसिकली अभी जो प्राइवेट सेक्टर है ना, दे आर लीडिंग, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं $100 बिलियन के ऊपर मिलाकर। हम्म। हाँ अडानी ग्रुप का सबसे लार्जेस्ट है, $100 बिलियन नेक्स्ट 5 to 6 years। Reliance, Tata Power, Torrent Power, and budget push for the green energy expansion likely। रूफटॉप सोलर स्कीम्स है, वाइबिलिटी गैप फंडिंग जो पब्लिक एक्सपेंडिचर रहेगा, ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स दे वुड बी targeted। Government is allocated 19,700 crore rupees to green hydrogen mission, 19,700 crore rupees। सो हाइड्रोजन में भी ये स्पेसिफिकली ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी इस साल क्वेश्चन था पीटी में 2024 में ही कि जो बाय प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, तो वाटर वेपर्स, इसलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं कि कोई ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस नहीं हो रहा है। फिर बाकी डिफरेंट टाइप्स के, जैसे ब्लू हाइड्रोजन है तो उसमें हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो और बाकी बहुत सारी टाइप्स की हैं। Targeted production of 5 million metric tons of green hydrogen by 2030 under the Green Hydrogen Mission। रूफटॉप सोलर स्कीम में द टारगेट इज 10 million हाउसहोल्ड में इंस्टॉल किया जाना चाहिए, एंड हेयर वी एक्सपेक्ट टू रिसीव अप टू 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री एवरी मंथ। ठीक है, ये बाकी इसके हमने जो ब्रॉडर चैलेंज की बात करी थी कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से डिफरेंट चैलेंजेस यहाँ पे भी हमें फेस करने को मिलेंगे, तो उसके लिए क्या आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, या उसके लिए हम क्या सोल्यूशंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, R&D कर रहे हैं, तो वो भी एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है। हम्म देन स्पेशल इकोनॉमिक जोन रिफॉर्म्स की बात हो रही है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है व्हेन वी टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया। सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगेन एक सेग्रीगेटेड बोल सकते हैं टेरिटोरियल जोन जिसको फॉरेन टेरिटरी कंसिडर किया जाता है। वो बनाए गए स्पेसिफिकली टू प्रमोट द शेयर अगेन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, एमएसएमई प्रोडक्शन, उनको कुछ इंसेंटिव्स दिए गए, फॉर एग्जांपल कि एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, एंड देन ग्रेजुअली भी इट विल बी फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर अमाउंट। So to promote again employment and बाकी सेल्फ सफिशिएंसी सो दैट अगर हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम हो सके, तो एक SEZ एक्ट भी है, तो ये स्टैट्यूटरी है, 2000 का एक्ट है, रूल्स वर इफेक्टिव फ्रॉम 2006।
तो अभी हमें देखना पड़ेगा अभी अभी हम करेंटली क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं एससीजेड में स्पेसिफिकली। एक तो इंडिया में वी कैन से कि इतने लार्ज नंबर ऑफ एससीजेड्स नहीं है। तो एससीजेड्स का हमेशा जो एक मॉडल हम इंटरनेशनली बात करते हैं सक्सेसफुल मॉडल, वो चाइना की बात करते हैं। सो इंडिया में इतने ज्यादा डाइवर्स और हायर नंबर ऑफ एससीजेड्स नहीं है, एक वो ब्रॉडर चैलेंज हो गया। So as of March 31, out of 423 formally approved SEZs, उनमें से 375 have been notified and 280 they are operational, in which 5,700 units have been approved. तो इसमें और इन्वेस्टमेंट हो रही है करंटली। देन नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, तो दे से कि 2024 फाइनेंशियल ईयर में टोटल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो था, दैट हैज आल्सो इंक्रीज्ड बाय 20%। इसमें मानसी लिखा हुआ ना रिफॉर्म शॉर्ट हम्म बाय द इंडस्ट्री, तो ये बता दो एक बार। डैश बिल DESH रिफॉर्म शॉर्ट, क्या रिफॉर्म मांग रहे प्रेजेंटली? तो एज एन इन्वेस्टर्स जो उनका क्लेम है, जो चाहते हैं रिफॉर्म्स, दे वांट टू यूटिलाइज डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज बिसाइड्स द ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट। ठीक है, ये तो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया कि ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में आप जो भी कमोडिटी है आप एक्सपोर्ट करोगे, बट जो डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज है, डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं, तो क्या जो हाईटेक इंडस्ट्रीज हैं उसको प्रमोट करने के लिए भी हम एसइजेड्स बना रहे नहीं बना रहे? फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वो एरिया हो गया। देन बेटर इंटीग्रेशन ऑफ एसइजेड यूनिट विद द लोकल मार्केट, ये अभी इतना नहीं है क्योंकि अगेन हमारा जो मेन आइडिया एसइजेड्स के पीछे वो एक्सपोर्ट प्रमोशन है। तो लोकल मार्केट में भी डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स, क्या वो भी एक हमारा इंटेंशन है बिहाइंड द मैन्युफैक्चरिंग और नॉट, सो दैट इन्फ्लेशन जो है, और स्पेसिफिकली सप्लाई साइड इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रही है, फूड इन्फ्लेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये एसईजेड्स मॉडल जो हमें हेल्प कर सकता है नहीं कर सकता, एक ये पार्ट हो गया। देन एट प्रेजेंट वी सी की जो फुल कस्टम्स ड्यूटी हैज टू बी पेड इफ द गुड्स आर सोल्ड इन द डीटीए। तो डीटीए इज द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, तो आपको 100% पे करना पड़ेगा ड्यूटी, क्योंकि तो ये इसको बोला कि नहीं बोला कि करना। एसईजेड को हम फॉरेन टेरिटरी कंसिडर करते हैं, तो आप अगर इंडिया में इंडियन लोकल मार्केट में सेल कर रहे हो तो वो इम्पोर्ट की तरह देखा जाएगा। तो इसलिए आपको ये जो टैरिफ है, टैरिफ ड्यूटी, आपको 100% पे करनी पड़ेगी। तो क्या इसमें कुछ हम रिड्यूस कर सकते हैं, इंसेंटिव दे सकते हैं? एक वो एस्पेक्ट भी है, ये हिंड्रेंस है अगेन जो इंटीग्रेट नहीं हो पाया हमारी लोकल मार्केट के साथ। देन इंस्टेड ऑफ, तो उन्होंने बोला है कि इंस्टेड ऑफ लेविंग दिस फुल कस्टम्स ड्यूटी, यूनिट शुड बी आस्क्ड टू पे बैक द ड्यूटी बेनिफिट्स अवेल्ड ऑन इनपुट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सच गुड्स। तो थोड़ा बहुत जो जीएसटी टाइप वाला मॉडल है उसकी बात हो रही है। तो फ्री ट्रेड जोन जो है यूएसए में, उनको इस तरीके के बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, ये बोला जा रहा है। ठीक है, यही है, ये कुछ रिफॉर्म्स हैं। टैक्स बेनिफिट्स की बात हो रही है, तो पेमेंट ऑफ मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वाज exempted to them specifically, so they can buy goods and services from the domestic market without paying the GST, central sales tax, goods which are outside GST सिर्फ उन्हीं के लिए है, एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज तो उनको पे नहीं मतलब करनी इसमें नहीं है। है कि इसमें लिखा हुआ है कि मेड इन कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, मतलब फॉरेन करेंसी में ट्रेड होता है क्या अंदर में ऐसी चीज है? कहाँ पे मेंशन है स्पेसिफिक लाइन बताओगे? फॉर एग्जांपल रिफॉर्म शॉर्ट बाय द इंडस्ट्री है ना, उसके हम्म अंदर तुमने मांग जो 103 लाइन नीचे, एट प्रेजेंट पेमेंट फॉर सर्विस ओड बाय SEZ यूनिट हैज टू बी मेड इन कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। हाँ, क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्ट हो रहा है ना, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एसईजेड एक फॉरेन टेरिटरी है, उसमें से गुड्स जो इंडिया की मार्केट में सेल हो रहे हैं वो हमारे लिए इम्पोर्ट्स कंसिडर किए जाएंगे। तो हाँ इम्पोर्ट्स तो फॉरेन करेंसी में उसको कन्वर्ट करके ही हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसलिए लिखा है। तो इसलिए लिखा है कि ठीक दिस है। इज अनजस्टिफाइड, तो पेमेंट शुड बी मेड इन रुपी। तो ये इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी में भी एक तरीके से हेल्प कर सकता है, बट है तो वो इंडियन टेरिटरी, बस हम उसको कंसिडर करते हैं फॉरेन टेरिटरी। बट अगेन जो हमारे फॉरेक्स के ऊपर प्रेशर है उसको रिड्यूस करने में ओवरऑल अगर कर मानसी सकते हैं। बोलेंगे 3 एरियाज है, अगर क्वेश्चन में भी आता है हम्म 3 एरिया फॉर एग्जांपल, तो इसको अगर सिंपली पुटअप करना है क्या रिफॉर्म चाहिए,
तो SEZ में जो फॉरेन टेरिटरी कंसिडर करते हैं उसके अंदर में इंडियन रुपी का भी ट्रेड होना चाहिए। दूसरा, जो फॉरेन टेरिटरी कंसिडर करते हैं उसको बाकी जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है उसमें कस्टम ड्यूटी कम करना चाहिए ताकि इंटीग्रेशन हो सके, राइट, है ना। लोकल मार्केट इंटीग्रेशन करना चाहिए और एक्सपोर्ट प्रमोशन हम्म। में तो हेल्प करेगा, और डाइवर्सिफाइड एरियाज में भी वी कैन गो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ SEZs। ठीक है, आगे नेक्स्ट लिंक में कंटिन्यू करते हैं।